And a very good afternoon, everyone. Please confirm if we are live already. Good afternoon, Anshuman, Vidushi, Sonia, Nidhi, Ashish, Devyani, Rachaita, Harsh, Sudeep, Rishika, Neelam. Good afternoon, good afternoon. Hi, Rakesh. ये क्या लिखा है तुमने? छाटा पड़ जाएगा अब. Good afternoon. Harsh, are you preparing for 23 CAT as well? Namaste. Hi, Sanjana. हेलो मानस. हाय संतोष. हेलो रवि. ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? हाय जाम्बुवी. हाय हर्षिका, आयुष, ईशिका, मेधा, अनुष्का, ऊर्जा, नरसिम्हा. हेलो शिप्रा. हाय हर्षित. हाय राम. आरुषि, गौतम, धर्मराज, सोनल, रिम्पा. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. Priyanka, Neha. Okay, let's begin. I think we are enough now. Today, what do you think are we going to talk about? ये इमोजी आज मेरा मूड है थोड़ा थोड़ा, तो बस इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. हार्ट उड़ रहा है, मैंने पकड़ लिया है. हाय शिवम एंड नितिन. मैं ठीक हूँ. गौतम, व्हाट डू यू थिंक इज़ द टॉपिक टुडे? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक रूठना? तुम में से कितने लोगों को रूठने में बड़ा मज़ा आता है कि कोई तुम्हें नाराज़ कर दे, फिर तुम रूठो, बात करना बंद कर दो, मुँह सड़ा के बैठ जाओ घर के किसी कोने में, और फिर कोई आके तुम्हें मनाए. हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? यस अल्ताफ, आई एम गुड. हाउ आर यू? गर्ल्स, ये तुम्हें कहाँ से गर्ल दिख रहा है? आशीष, सेक्सिस्ट कहीं के. हल्का सा, बिल्कुल नहीं. कोई मनाने वाला हो तब भी नहीं. मी बट कोई मनाता नहीं है. ओए होए, बड़ी सैड लाइफ है. एक्स की याद आ गई. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूठना. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिनोमिनन ऑफ सल्किंग. ठीक है, तो जो आप ये कोने में बैठकर अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं और वेट करते हैं कि कोई आए और मना ले. ठीक है, पार्ट टाइम जॉब इज़ मनाना. कोई मनाने वाला ही नहीं है, किससे गुस्सा हो जाऊँ? ओहो हो, ओहो हो. एक काम करो, एक दिन तुम सब मुझसे गुस्सा हो जाओ, मैं तुम्हें मना लूँगी फटाफट. ठीक है, हाँ, बस शर्त यही है कि जल्दी मान जाना. ठीक है. Okay, so this is an article which has come to me from a student, and I'm taking it up on student demand. I really liked it, and yeah, so thank you for recommending it. Let's begin. Before we begin, there is today is the last day of this flat 20% off which is going on, and with this 20% off, you're also getting a 6-month extension free. So 6 months plus 3 months is for 20,800. 12 months plus 6 months is for 24,000. So you can choose between these plans, whatever suits you, you can choose it. And to avail these discounts, you can use my code Karishma Live. Also, just a lot of you have been asking, so Karishma Live is not valid just for CAT, but throughout the Unacademy platform, so you can use it for other courses as well, and you can refer it to your friends and family. The CAT Prodigy test will happen on the 11th of June now at 3 p.m., wherein you're getting multiple scholarships and free mentorship from the teachers. Okay, so you should appear for it. This is a brief snapshot of how our results have been this year. Okay, and we have started a new batch, Zero to Zenith batch, which started yesterday on the 25th of May, and my RC Genres course is a part of this batch. The first class of RC Genres is on Sunday 28th at 7 p.m. to 8:30 p.m. So you can join me. It's a beautiful course which intends to help you with basic background knowledge of various genres in RC that come every year, not just as RC passages, but also they help you in GK and personal interviews. So you can check out the details. आपसे गुस्सा नहीं हो सकते, कितने अच्छे हो तुम. वाओ, आई लव यू ऑलरेडी. ठीक
है। हाँ, मुंबई कार को देखा बीच पे जाके करिश्मा लाइव लिख रही है। प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन फीचर्स इस प्रकार हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होमर ने जब इलियड लिखी, तो होमर ने इलियड लिखी है, सबको पता होगा। इलियड इज एन इंग्लिश एपिक, ओपन्स विद सम एपिक एंशिएंट ग्रीक सल्किंग। तो कोई एक ग्रीक व्यक्ति बैठ के सल्क कर रहा है, सड़ा हुआ है। Agamemnon, who is the leader of the Greeks, is forced to return Chryses, the woman he has won as a prize following a battle at Troy. तो Agamemnon ने ट्रॉय के बैटल में क्राइसिस नाम की एक औरत को जीता था। तो देख लीजिए आप, कल कौन कह रहा था मुझसे औरतों की बहुत इज्जत होती है, ठीक है। सो फोर्स टू रिटर्न क्राइसिस, द वुमन ही वन एज अ प्राइज फॉलोइंग अ बैटल एट ट्रॉय। तो उसने ये बंदी जीती थी, और क्योंकि कोई सड़ने लग गया था, बैठे बैठे मुंह बना रहा था, तो इस बंदे को अपनी बंदी लौटानी पड़ गई, ठीक है। हम कलर बदल लेते हैं। अनॉयड ही सीजेस ब्राइसिस द वुमन ट्रॉफी ऑफ एक्लिस द ग्रीक्स स्टार फाइटर। तो उसको गुस्सा आया कि मैंने अपनी बंदी लौटाई है, तो उसने दूसरे बंदे की बंदी को छीन लिया, ब्राइसिस को, जो कि एक्लिस की वुमन ट्रॉफी थी। एक्लिस की कहानी हमने ऑलरेडी ग्रीक माइथोलॉजी की क्लास में पढ़ ली है, ठीक है। जीके कैसे करूँ? जीके के मल्टीपल पेजेस हैं, मल्टीपल यूपीएससी के चैनल्स हैं, वहाँ से करो, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, और कैसे तैयारी होती है जीके की, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, तुम लोग मुझे बताना वो रिक्वेस्ट थी या डांटना था, ठीक है। हाँ, ग्रीक स्टार फाइटर, तो ग्रीक्स के स्टार फाइटर एक्लिस की बंदी को छीन लिया। आप देख रहे हैं, मतलब बंदियों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको छीनना चिनाना चल रहा है। एक्लिस वेल्स दैट इट इज़ अनफेयर। एक्लिस रोने बैठ गया, वेल्स इज मातम करना, रोना कि यार ये तो बड़ा ही अनफेयर बात है। अनाउंस करने लगा कि आई एम गोइंग होम, और फिर अपने टेंट में जाके बैठ गया सड़ने के लिए। आगेमेम्नन ने बोला फाइन, जाओ घर, मुझे वैसे भी तुम पसंद नहीं हो। मोस्ट ऑफ अस विल नेवर एक्सपीरियंस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ हैविंग आवर ह्यूमन ट्रॉफी कॉन्फिस्केटेड बाय अ किंग। तो हमारी तो कोई ह्यूमन ट्रॉफी है नहीं, और हमारी किसी ह्यूमन ट्रॉफी को कोई राजा नहीं चुराने वाला है, लेकिन हमारे पास एक्लिस की सफरिंग यानी फ्लाइट के जैसे बहुत सारे फेमिलियर एस्पेक्ट्स हैं। एक्लिस की तरह आप भी सल्कर हो सकते हैं कि जाके आप अपने टेंट में बैठ जाएं, ठीक है। और वाई डू वी डू, यू प्रोबेबली हैड टू डील विद समवन एल्सेस सल्क टू, बट वॉट इज सल्किंग एग्जैक्टली, वाई डू वी डू इट, एंड वाई डज इट हैव सच अ बैड रेप्यूटेशन। तो भाई अब तुमको दूसरे के सल्क के साथ डील करना पड़ेगा, और सल्किंग एग्जैक्टली है क्या, हम क्यों करते हैं, और सल्किंग इतनी बदनाम क्यों है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स जूम इन ऑन वॉट सल्किंग इन्वॉल्व्स। तो देखते हैं कि सल्किंग में होता क्या है। सल्कर्स सल्क व्हेन दे फील रॉन्ग्ड। इस आर्टिकल में लगभग 112 बार सल्क वर्ड आएगा, तो मैं बोलते बोलते इरिटेट हो जाऊंगी और आप सुनते सुनते इरिटेट हो जाएंगे, बट लेट्स डू इट। तो सल्कर्स सल्क व्हेन दे फील रॉन्ग्ड, उनको बुरा लगता है तो वो अपना मुंह सड़ा लेते हैं। समटाइम्स दे रियली हैव बीन रॉन्ग्ड, वाकई में कुछ गलत हुआ होता है, भाई आपने बंदी हड़प ली उसकी, तो उसके संग गलती हुआ है। बट समटाइम्स दे आर जस्ट सार अबाउट लूजिंग फेयर एंड स्क्वायर। तो बहुत सारे लोगों को विक्ट्री डिफीट लेने ही नहीं आती है, तो वो लूज़ करते हैं और उसके बाद मुंह सड़ा लेते हैं, ठीक है। तो उनको फेयर एंड स्क्वायर हारने पे भी तकलीफ होती है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए। वैसे तो हम इंडियन एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ट्रंप से काम चलाते हैं। कोविड-19 पैंडमिक जब आसपास चल रहा था, उसने अपनी पब्लिक लाइफ ख़त्म कर दी, और 2020 की इलेक्शन डिफीट को वो झेल ही नहीं पाया। उसने कहा कि फालतू की कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ, और इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, और जिसकी वजह से मैं ही जीतने वाला था लेकिन मैं जीत नहीं सका, उसकी वजह से उसकी राइटफुल विक्ट्री चली गई है। ट्रंप हैड नॉट बिन रॉन्ग, ट्रंप के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन इसकी वजह से उसने सल्किंग करना बंद नहीं करा। उसने खूब नौटंकी करी कि देखो देखो मेरे साथ गलत हुआ है, सबने मेरे वोट छीन लिए, कुछ तो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है, मैं जीत नहीं पाया, ब्ला ब्ला। तो कभी कभी हम ऐसे ही सल्क करते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रंप सेफ एग्जाम्पल है ना, वो जेल में नहीं डालता वो आपको। नेक्स्ट, अ सल्कर डील्स विद देयर फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड बाय सोशली विड्रॉइंग। Achilles withdrew from fighting. ट्रंप विड्रू फ्रॉम हिज प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज़। तो भैया ट्रंप ने बैठ के ना अपनी प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ से विड्रॉ कर लिया, उसने कहा हम नहीं खेल रहे, ठीक है। और एकिलीज ने विड्रॉ कर लिया फाइटिंग से, उसने बोला भाई हम भी नहीं खेल रहे। द रेस्ट ऑफ अस में सिंपली रिफ्यूज टू स्पीक टू हुएवर वी फील रॉन्ग्ड बाय। और हम लोग भी बात करना बंद कर देते हैं जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है। सोशली विड्रॉइंग व्हेन वी फील रॉन्ग्ड इजंट ऑलवेज सल्किंग दो। तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है और हम खुद को विड्रॉ कर लेते हैं और अकेला कर लेते हैं खुद को, तो ये कोई इसको हम हमेशा सल्किंग नहीं कहेंगे। 2 थिंग्स आर नीडेड टू टर्न विड्रॉल इनटू अ सल्क। तो कभी कभी हमारे लाइफ में जब कोई बुरी चीज़ होती है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं हर सोशल सिचुएशन से। उस विड्रॉल को सल्क में कैसे तब्दील करते हैं? एक है एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट, कि आप किसी को पनिश कर रहे हो।
तो सल्कर का हमेशा एक टारगेट होता है। विड्रॉ करने के वक्त कोई टारगेट नहीं होता, मैंने विड्रॉ कर लिया, खुद को मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, मैं आज किसी को फ़ोन नहीं करूँगी या किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँगी या किसी से मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगी या खोलूँगी नहीं, ये हो गया विड्रॉल। लेकिन मैं मुंह सड़ा रही हूँ जानबूझ के किसी ऐसे व्यक्ति के सामने या आगे जिसको कि मैं चाहती हूँ कि नोटिस करे कि मैं मुंह सड़ा के बैठी हूँ, मैं रूठ के बैठी हूँ। तो फिर ये जो विड्रॉल है, अगर इसका एक टारगेट है तो फिर सल्किंग है। तो एक पर्सन होना चाहिए या पर्सन्स होने चाहिए जिन पर आप सल्क कर रहे हैं, वेदर दैट्स बाय लूजिंग इन अ बैटल, जैसे एगेमेम्नन ने करा था जब एक्लिस सल्क कर रहा था, या फिर डिजीज़ के साथ अब तबाह हो रहे हों जबकि यूएस पब्लिक सफ़र कर रही थी जब ट्रम्प सल्क कर रहा था, या फिर सिंपली आपको एक स्ट्रेस हो रहा होता है जब कोई आपको कोल्ड शोल्डर देता है, जब कोई आपसे ठंडा पड़ जाता है आपके आगे और कोई आपसे बात करना मना कर देता है, या कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता। आजकल की तुम लोगों की भाषा में लोग आपको सीन जोन कर देते हैं, तो जब आपको कोई सीन जोन कर देता है तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। विदाउट एन इनकन्वीनियंस्ड टारगेट सल्किंग इज अनसेटिस्फाइड। अगर टारगेट नहीं है तो फिर सड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा सड़ तो ले लेकिन मनाएगा कौन। तो फिर सल्किंग सेटिस्फाइंग तब तक नहीं है जब तक कि सामने से कोई मेरे को मनाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। देर इज़ नो पॉइंट थ्रोइंग अ सल्क एट समवन हु डजंट केयर अबाउट कम्युनिकेटिंग विद यू। तो ऐसे लोगों के संग रूठना किसी काम का नहीं है जो आपसे बात करने के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप हमेशा उसी के आगे सड़ते हैं जो कि आपसे बात करने की कोशिश करता है, जो आपको मनाने की कोशिश करता है, ठीक है। द सेकेंड थिंग नीडेड टू टर्न अ विड्रॉवल इनटू सल्क इज परहैप्स सरप्राइजिंगली कम्युनिकेशन विद द टारगेट। तो सेकेंड चीज़ जो विड्रॉल को सल्क में बदलने के लिए सरप्राइजिंगली काम आती है वो है कम्युनिकेशन विद द टारगेट। अ सक्सेसफुल सल्क कम्युनिकेट्स टू द टारगेट दैट द सल्कर इज अपसेट। तो पहले चीज़ तो क्या थी कि एक टारगेट होना ज़रूरी है, ऐसा बंदा होना ज़रूरी है जो आपके सड़ने से खुद सड़ जाए, जिसको फ़र्क पड़े। और दूसरा ये ज़रूरी है कि आप उसको कम्युनिकेट कर पाएँ कि देखो मैं खफा हूँ। कई बार लड़कों के केस में लड़कियाँ खफा होती हैं और लड़कों को पता ही नहीं चलता कि खफा है क्यों। तो थोड़ा एक्सप्लिसिट होके फिर पैर वैर पटकने पड़ते हैं, दरवाजे पटकने पड़ते हैं, खाना बनाने में कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है, तब जाके इनको समझ में आता है कि अच्छा आज मैडम खफा है। वरना बंदों को समझ ही नहीं आता क्योंकि दिमाग तो उतना है नहीं ना, उनको समझ ही नहीं आता कि बंदी खफा है। उनको लगता है होगा कुछ। और आजकल तो फिर लैक ऑफ एजुकेशन है तो लोग समझते हैं मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, उनको ये भी नहीं पता रहता कि मूड स्विंग्स का टाइम कब होता है। बट एनीवे, तो दे रिजाइन द टारगेट फॉर बीइंग अपसेट एंड दैट्स इट्स जो टारगेट जॉब टू मेक थिंग्स राइट, ठीक है। तो टारगेट जॉब उनका ये है कि भैया चीज़ों को सही कर लें। गिवन दैट सल्कर्स often refuse to speak to their targets, how is it possible for them to communicate anything? लेकिन बात ये कि जो रूठा हुआ है वो बात ही नहीं कर रहा। तो जब बात ही नहीं कर रहा तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज नॉट ऑल कम्युनिकेशन इज़ वर्बल। पॉसिबल इसीलिए क्योंकि सारा कम्युनिकेशन बोल के थोड़े किया जाता है। बहुत सारा अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो नॉन वर्बल रहता है। थिंक ऑफ हाउ अ सिंपल थैंक यू कैन बी रेंडर्ड इनसिंसियर और सिंसियर। अब थैंक यू बोलने के भी मल्टीपल तरीके हैं, एक है थैंक यू और एक है थैंक यू। ग्रेटफुल और रिजेंटफुल, एक होता है थैंक यू और एक होता है थैंक यू। हार्टफेल्ट और सरकास्टिक, थैंक यू, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी लैंग्वेज एंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर। द सेम गोज फॉर द सल्कर, सलन, नथिंग। तो जब सामने वाला बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है तो उसका कुछ नहीं हुआ है बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है कि कुछ हुआ है या बहुत कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ क्या है। तो हम कितनी बार जब बोल देते हैं कुछ नहीं हुआ है तो बहुत कुछ हो रखा होता है, ठीक है। इन आंसर टू क्वेरीज अबाउट व्हाट्स रॉन्ग, द सल्कर डज नॉट एक्सप्लिसिटली एडमिट टू एनीथिंग बीइंग रॉन्ग। तो उस रूठा हुआ बंदा आपको साफ साफ जाके नहीं बोलता कि ए मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है, मैं तेरे से रूठी हुई है, मेरे को मनाने का। देयर बॉडी लैंग्वेज एंड जनरल डीमेनर टेल अ डिफरेंट स्टोरी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, उनका जनरल उठना बैठने का तरीका अलग हो जाता है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। फॉर द सल्कर टू कम्युनिकेट देयर अपसेट टू द टारगेट इन दिस नॉन वर्बल वे, इट हेल्प्स इफ द टारगेट इज एबल टू स्पॉट दैट द सल्कर इज नॉट देयर यूजुअल सेल्फ। तो अब ये गेम है, अब टारगेट को स्पॉट करना है कि देखो सल्कर जो है वो नेचुरल वे में बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसको समझना पड़ता है कि देखो कुछ प्रॉब्लम हुई है। दिस हेल्प्स एक्सप्लेन वाई सल्किंग टेंड्स टू बी डायरेक्टेड एट पीपल हु नो द सल्कर रीजनेबली। इसलिए रूठा उससे जाता है जो आपको समझता जानता हो। अनजान लोगों से आप क्या रूठिएगा, ठीक है। तो लोग मुझे क्लास में आके बोलते हैं अरे आप तो हमसे गुस्सा हो गए। भाई मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? तो गुस्सा होंगे तो क्लास में दिख जाएगा जब सबसे गुस्सा होंगे, और गुस्सा उसी से होंगे जो रेगुलर होगा, जो रोज़ क्लास आता होगा। जो क्लास में पहली बार आया उससे कोई क्या ही गुस्सा होगा।
तो सल्कर अगर रीजनेबली वेल जानता है टारगेट को तो ही सल्किंग काम आती है। अनजान लोगों के बीच में आप करते रहिए सल्क, मेट्रो में बैठ के कोई आपको मनाने थोड़े ही आएगा। इसको अनपैक करते हैं। टारगेट कैसे डिसाइफर करता है कि सल्किंग चल रही है? लुकिंग एट हाउ वी मैनेज टू कम्युनिकेट मोर जनरली कैन शेड लाइट हियर। तो हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। 20th century British philosopher of language Paul Grice argued that conversations are cooperative efforts in which the participants have a common purpose or at least a mutually accepted direction. तो philosophers का कहना है कि भैया कॉन्वर्सेशन जो होती है वो कोऑपरेटिव एफर्ट होती है, दोनों लोगों से, दोनों तरफ से कोऑपरेशन चल रहा होता है और हमारे पास एक कॉमन पर्पस होता है बात करने का, या फिर एटलीस्ट एक डायरेक्शन होती है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं मिलकर. Taking each other to be cooperative communicators enables us to make sense of conversational contributions that at face value seem irrelevant or nonsensical. तो एक दूसरे को कोऑपरेटिव कम्युनिकेटर जब हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो हमको एक सेंस मिलता है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, ठीक है. इफ़ आई आस्क वुड यू लाइक टू मीट फॉर कॉफ़ी टुमारो एंड यू रिस्पॉन्ड विद सॉरी माई डॉटर हैज़ अ हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट, तो शायद आपका जो आंसर है वो रिमोटली भी रेलिवेंट नहीं है. तो मैंने तुमसे बोला कल कॉफ़ी पीने चलोगे और तुम जवाब दे रहे हो यार मेरी बेटी का कल अपॉइंटमेंट है, तो फिर अजीब सा आंसर है, ये इररेलेवेंट लगता है, नॉन सेंसिकल लगता है. लेकिन आई कैन मेक सेंस ऑफ इट विच इज़ इररेलेवेंट, समथिंग इररेलेवेंट, सिंपली बिकॉज आई एम कोऑपरेटिंग विद यू इन कम्युनिकेशन. मुझे समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो. तो क्यों मुझे ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होती कि आपकी बेटी का अपॉइंटमेंट है? क्योंकि आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कॉफ़ी पे चलना पॉसिबल क्यों नहीं है. तो ये सुनने में भले ही इररेलेवेंट लगता है, लेकिन जो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उनको इररेलेवेंट नहीं लगता है. Starting from the assumption that you are cooperating in our shared conversational aim of answering my question, I interpret your response not as an irrelevant factoid about your daughter's health, but in a surprisingly rich way. तो भैया कि ये अज्यूम करना कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपके रिस्पॉन्स को इररेलेवेंट नहीं समझूंगी कि अरे यार मैंने तुझसे कॉफ़ी पूछा, तू मुझे बेटी बता रहा है, लेकिन मैं बल्कि इनफैक्ट आपके डॉक्टर के हेल्थ के बारे में पूछूंगा और आपसे कंफर्मेशन लूँगा या आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूँगा कि हुआ क्या है. दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट यू विल नॉट बी एबल टू जॉइन मी फॉर कॉफ़ी, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई नॉट एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट. तो सॉरी बोला तो एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एंड वाई नॉट बिकॉज माई डॉटर हैज़ एन अपॉइंटमेंट. This indirect, seemingly ambiguous, unclear, irrelevant rejection of my invitation ends up telling me more than a direct and concise no. तो मैं आपसे पूछती कॉफ़ी पीने चलोगे, तुम मुझे बोल देते नो, लेकिन तुमने नो बोलने की बजाय बोला कि सॉरी मेरी बेटी का कल अपॉइंटमेंट है. तो सुनने में तो सामने वाले को ये एम्बिगुअस लग सकता है, अनक्लियर लग सकता है, जवाब इररेलेवेंट लग सकता है, इनडायरेक्ट लग सकता है, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट करते वक्त मेरे साथ कोऑपरेशन करा है, मुझे ये एक डायरेक्ट और कंसाइज नो से बेहतर आंसर लगता है, क्योंकि मुझे ये समझाता है कि तुम मेरे साथ सच में क्यों नहीं आ सकते हो कॉफ़ी पीने. सल्किंग भी एक तरीके का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है. वर द सल्कर टू अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली व्हाट सल्किंग इनडायरेक्टली कम्युनिकेट्स, they could say something like, I am upset by your behavior and I am going to feel better only if you solve my problem you've created while also soothing. कितना आसान हो जाता अगर हम सब ये बोलना शुरू कर देते कि देखो इधर हम रूठ गए हैं, हमें मना लो, प्यार से रिझा लो और सब कुछ ठीक कर दो, और कुछ ऐसा कह दो कि बस दिल में ठंडक पड़ जाए क्योंकि तुमने जो हरकत करी वो बहुत बर्बाद है, तो हमको ये बुरा लग गया है और इसको ठीक करो. लेकिन हम में से कितने लोग डायरेक्टली ये एडमिट करने के लिए रेडी रहते हैं या डायरेक्टली बताते हैं कि देखो भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और लेट्स जस्ट मेंड इट, लेट्स जस्ट करेक्ट इट, लेट्स जस्ट बेरी द हैचेट. डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ही करते हैं. तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या, दरवाज़ा पटको, पैर पटको, चाय मत बना के दो, मुंह सड़ा लो, इधर उधर घूमो, फ़ोन पटको, ज़बरदस्ती रिमोट के बटन ज़ोर ज़ोर से दबाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वर्बलाइजिंग दिस कम्स विद पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस. अगर वो वर्बलाइज कर देगा, अगर आपने बता दिया कि देखो हम रूठ गए हैं, हमें मना लीजिए, तो फिर बड़े डिसएडवांटेजेस हैं. वन इज़ दैट डूइंग सो वुड कम्युनिकेट दैट द सल्कर इज़ ओपन फॉर अ डिस्कशन. अगर मैंने बोल दिया कि देखो हम रूठ गए हैं, तो इसका मतलब मैं आपको चांस दे रही हूँ कि आप मुझे मना सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि कोई डिस्कशन हो. तो ये बड़ा आयरॉनिकल है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मनाया जाए पर मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ. तो अगर मैं बोल दूँगी कि मैं रूठी हुई हूँ,
तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि देखो हम डिस्कस करने को तैयार है, लेकिन हम तो डिस्कस करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि हम तो रूठे हुए हैं, और सल्कर्स डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। स्पेशली सिंस डूइंग सो माइट लीड टू बीइंग चैलेंज्ड। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मैं रूठी हुई हूँ तो सबसे पहले तो बहस होगी कि मेरा रूठना जायज़ है या नहीं है, और मेरे नज़र में तो जायज़ है। वेदर दे आर जस्टिफाइड इन बीइंग अपसेट, in resenting the target and in demanding that the target solves the problem while soothing them। तो भाई मैंने आपको बोल दिया मैं रूठ गई हूँ, तो आप मुझे बोलेंगे पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, तो डिस्कशन होगा। फिर आप मुझे बोलेंगे कि तू मेरे साथ ऐसे अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रही है। फिर आप बोलोगे कि यार तेरा रूठना ही जायज़ नहीं है। फिर आप ये भी चाहते हो कि आप मुझे सूद नहीं करना चाहते और मैं चाहती हूँ आप मुझे सूद करें और मुझे मनाएं। तो मेरी कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मैं कभी भी खुलकर नहीं बोलूँगी कि देखो मैं खफा हूँ, मैं बस खफा होने की एक्टिंग करती रहूँगी। By contrast, withdrawing verbal communication enables the sulker to communicate indirectly that they are upset। तो हम indirectly ही non-verbal communication से बताते रहते हैं कि देखो हम रूठ गए हैं, and that discussion of the matter is off the table। और हम ये बताते हैं कि भैया ये जो डिस्कशन है ये एकदम ऑफ द टेबल है। A successful sulk prompts the target to meet the sulker's needs without discussion। तो एक जो सक्सेसफुल सल्क है वो तब सक्सेसफुल है जब वो टारगेट को बता पाता है कि देख अपन सड़ रहा है और अपन सड़ता रहेगा, तेरे को नोटिस करना मांगता है, अपन बात नहीं करने वाले। साइलेंट ट्रीटमेंट, एग्जैक्टली। इट्स नॉट जस्ट डायरेक्ट मेंशन ऑफ द सल्कर्स फीलिंग्स दैट्स ऑफ द टेबल। इन एडिशन नाइदर पार्टी शुड मेंशन द सल्क इटसेल्फ। अब मनाने वाला भी मेंशन नहीं करता कि देखो तुम रूठी हो मैं मना लूँगा। सल्क एक मैजिक स्पेल की तरह है जिसको अगर आपने रेफरेंस कर लिया डायरेक्टली तो वो टूट जाती है। आई रियली लाइक दिस लाइन। अ सल्क इज़ लाइक अ मैजिक स्पेल विच इज़ ब्रोकन इफ रेफरेंस्ड डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली बात करने लग जाएंगे कि देख तू सड़ रही है, मुझे पता है तू रूठ गई है, तू चाहती है कि मैं तुझे मनाऊँ, तो फिर सल्क में मज़ा नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगी कि हाँ मैं सड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे मनाए और अपोलोजाइज़ करे और मुझे अच्छा फील करवाए, तो फिर कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। तो सल्किंग वो साइलेंट मैजिक स्पेल है जिसको अगर बोल दिया गया तो वो टूट जाएगी। तो इवन अ सिंपैथेटिक मेंशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया तुमको कि अरे यार मुझे दिख रहा है तू सड़ रही है, मैं तेरी हेल्प कर दूँ, तो सलकर और रूठ जाएगा कि अच्छा मैं सड़ रही हूँ, अच्छा मैं रूठी हूँ। अब तू मुझसे इस तरीके से बात करेगा, एक तो ऐसी हरकतें, ऊपर से तू मुझे ये बोल रहा है। So it just gives you something else, something more to sulk about, right? The sulker cannot explicitly mention the sulk either, at least not until it is over। जब तक रूठना मनाना ओवर नहीं हो जाता तब तक कोई दोनों पार्टीज इसके बारे में बात नहीं कर सकती। आप सक्सेसफुली सल्क कर ही नहीं सकते अगर आपने एडवांस में अनाउंसमेंट कर दिया है कि चलो अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं रूठने जा रहा हूँ, घर वालों प्लीज़ नोटिस कर लेना, हेलो हेलो एवरीबडी प्लीज़ नोटिस कि मैं आज खाना लेट खा रहा हूँ या अवॉइड कर रहा हूँ। तो if you announce it that you've upset me and I am going to sulk about it all day, you cannot successfully sulk. The mission fails. Indeed, announcing your need to withdraw is exactly the sort of healthy, clear verbal communication that many prefer to sulking। लेकिन हमारी जो नीड है विड्रॉ करने की, ये हेल्दी कम्युनिकेशन है कि देखो मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, मेरा मूड सड़ा हुआ है, कोई मेरे पास नहीं आएगा, तो हम ये प्रेफर करते हैं, लेकिन कोई ये करता नहीं है। डे बॉटन के फिक्शनल सल्कर के लिए सल्क कहता है सल्क खत्म हो जाता है और उसके बारे में कोई दोबारा जिक्र नहीं करता, वैसे ही जैसे सल्कर एक ईमेल कर दे कि देखो मेरा ना भी दिमाग घुमा हुआ है, मुझसे बात मत करो। तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि मेरा दिमाग घुमा हुआ, मुझसे बात मत करो, आई नीड सम स्पेस अलोन, आई नीड सम टाइम अलोन, तो फिर सल्किंग किस बात की? सामने वाला कहेगा तूने ही तो बोला था अकेला छोड़ने को, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। फिर इस टॉपिक पे नया रूठना स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा मैं बोलूँगी मुझे अकेला छोड़ दो तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, मुझसे पूछोगे नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग। सो इट गोज ऑन एंड गोज फोर्थ। द सल्कर्स रिफ्यूजल टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली about their feelings is part of what is frustrating for the target। सल्कर का रिफ्यूज़ल एक्सप्लिसिटली बात करने का यही टारगेट को फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि सल्कर डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहा। दिस इज क्यूरियस बिकॉज इन अदर कंटेक्स्ट अ रिफ्यूज़ल टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली इज़ अनऑब्जेक्शनेबल और इवन वेलकम। तो ये काफ़ी क्यूरियस केस है, क्योंकि अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली कर लेते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता है। कहता है ये बात फ्लर्टिंग में भी होती है। तो जब हम फ्लर्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली, फ्लर्टिंग कैसे काम करती है कि आप ग्रेजुअली वर्कआउट करते हैं और जो अट्रैक्शन है वो अपनी पेस पे चलता रहता है और सामने वाले से रेसिप्रोकेट करता है और आप धीरे धीरे उनको जानने लगते हैं। और यही एक्साइटिंग पार्ट है फ्लर्टिंग का, दैट यू गेट टू नो अ पर्सन ग्रेजुअली एंड द अट्रैक्शन इज बीइंग रेसिप्रोकेटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स। आई गेट टू नो यू, यू गेट टू नो मी।
अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट में अपना इंटरेस्ट किसी को ऐसे दिखा देते हैं, सीधा जाके किसी को बोल देते हैं सी आई फैंसी यू एंड आई होप वी विल हैव सेक्स एज सून एज पॉसिबल, तो जितना अट्रैक्शन पाइल अप हो रहा था यू विल बी ब्लॉक्ड. ठीक है, सो यू कांट रियली वॉक अप टू समवन and tell them that dude, I'm obsessed with you and I can't stop thinking about you, so let's get in bed. You have to let the attraction rise on its own naturally. You cannot be explicit about it, you cannot be direct about it. If you're rushing to catch a train and ask a member of staff which platform your train's about to leave from, you want a clear and explicit answer, not a riddle. अगर आप एक ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और आप किसी से पूछते हैं कि ये बताओ कि मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आप एक क्लियर आंसर एक्सपेक्ट करते हो, एक डायरेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करते हो, आप पहेलियाँ एक्सपेक्ट नहीं करते. लेकिन सल्क का जो टारगेट होता है वो इज़ मोर लाइक समवन हु इज़ वांटिंग टू कैच अ ट्रेन दैन समवन हु इज़ फ्लर्टिंग. देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड दैट मेक्स अ लैक ऑफ एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेटिंग रादर देन एन्जॉयबल. तो एक प्रॉब्लम है, मैं रूठा हुआ हूँ, जो भी उसकी जो वजह है, और मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेटिंग अफेयर बन जाता है, फिर ये एन्जॉयबल नहीं रह जाता. और अगर कोई आपसे रूठा हुआ है तो बहुत दुख होता है. बीइंग सल्क्ड एट, इफ आई एम एट द रिसीविंग एंड ऑफ योर सल्क, इट लिटरली हर्ट्स. साइकोलॉजिस्ट फाउंड दैट सोशल, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल एक्सक्लूजन विच द टारगेट एक्सपीरियंसिस व्हेन द सल्कर विड्रॉज. मुझसे कोई रूठा, लेट्स से हमारे पेरेंट्स बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो लेट्स से मेरी मॉम मुझसे रूठी हुई है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, तो हमको कैसा फील होता है, हमको एक्सक्लूडेड फील होता है उनकी लाइफ से, आइसोलेटेड फील होता है. हमारे ब्रेन के वही एरिया ट्रिगर होते हैं इस टाइम पर जो कि फिजिकल पेन से ट्रिगर होते हैं. तो आप काम करोगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आप हेल्प करवाओगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा. आपका पहला प्रायोरिटी रहेगा कि मम्मी किस तरीके से नॉर्मल हो जाए, मान जाए. जब तक वो नहीं चलता, जब तक वो साइलेंट ट्रीटमेंट चलता रहता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिसर्च ने साबित करा है कि ब्रेन का जो एरिया फिजिकल पेन में एक्टिव हो जाता है, वही ब्रेन का वही एरिया तब भी एक्टिव हो जाता है जब कोई आपसे रूठ जाता है और आपको इरिटेशन हो रही होती है. किपलिंग विलियम्स, हु हैज स्पेंट डेकेड्स स्टडिंग ऑस्ट्रोसिज्म, ऑस्ट्रोसिज्म इज एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी, बहिष्कार जिसे कहते हैं, ठीक है, हैज रिमार्क्ड दैट द साइलेंट ट्रीटमेंट इज हाईली इफेक्टिव इन मेकिंग द टारगेटेड इंडिविजुअल फील बैड. तो किपलिंग विलियम्स ने बहुत टाइम तक सोशल एक्सक्लूजन की पढ़ाई करी है और उसने कहा कि जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत इफेक्टिव है किसी को बुरा फील करवाने में. आपको किसी को बुरा फील करवाना है तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे दीजिए. मैं इनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दें, बट लोग ऐसा करते हैं और आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए. इफ यू वांट हेल्थियर रिलेशनशिप्स देन अ गुड कम्युनिकेशन गोज अ लॉन्ग वे. So rather than being silent and being passive aggressive, just tell the person that this is my problem. But again, that will mean having a tough conversation, and who on earth wants to have a tough conversation? But this is tried and tested. Silent treatments are, they spoil the relationship, and direct communication always helps. ठीक है. The unpleasantness of being sulked at helps ensure that the target is motivated to work hard to resolve the sulk. This is pretty convenient for the sulker. तो जो अनप्लेजेंटनेस है सल्किंग की, और वो टारगेटेड है कि आप आके मेहनत करें और इसको रिजॉल्व करें, और सल्कर को बड़ा मज़ा आ रहा होता है ये करने में. ठीक है. सल्किंग इन द नॉलेज दैट द टारगेट विल कोऑपरेट इन वर्किंग टू रिजॉल्व दैट सल्क इज़ अ पावर मूव. आपको पता है कि मैं रूठा हुआ हूँ, अब तो ये मनाने आएगी या आएगा, तो ये एक तरीके से पावर मूव है. वन पर्सन डज इट टू द अदर पर्सन एंड द पर्सन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अब मैं रूठ गई हूँ आपसे, तो अब मैं रूठ गई, तो आप इसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकता, मेरा क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ नहीं, मैं रूठ गई, अब आप मुझे मनाते रहिए. अब मेरे ऊपर है, मैं कब मानूंगी. जब तक आप गिव अप नहीं कर देते तब तक तो एटलीस्ट द बॉल इज इन माई कोर्ट कि मैं कब मानूंगी. द टारगेट मस्ट फाइंड अ सोल्यूशन विदाउट द सल्कर्स इनपुट. और टारगेट इनपुट भी नहीं ले सकता कि अच्छा मैं तुझे मनाऊँ कैसे, फूल दे के मनाऊँ, चीज़ी बातें करके मनाऊँ, अपोलोजाइज करके मनाऊँ, अंगूठी दे के मनाऊँ, खाना बना के मनाऊँ, कैसे मनाऊँ. तो इनपुट भी नहीं ले सकते. For problems that arise in intimate relationships between family members, close members, romantic partners, things like resentment, jealousy, not having one's needs met, being able to talk through one's grievances is an important part of finding a solution. So the next time your mom is giving you a silent treatment, or your dad is giving you a silent treatment, or your girlfriend is giving you a silent treatment, it's important that you both sit down on the table and have a discussion कि आखिर प्रॉब्लम क्या है. सुनो सामने वाले की, समझो उसकी तकलीफ़ क्या है, और बैठ के वो ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करो. क्योंकि रिजेंटमेंट, जेलसी, अपनी नीड्स पूरी ना होना, ये सब बहुत कॉमन है फैमिली में, फ्रेंड्स में और स्पाउसेस में.
इसीलिए ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करने का तरीका सल्किंग नहीं होता, बल्कि ग्रीवांसेस के बारे में बात करना होता है. एंड बिकॉज दीज आर एग्जैक्टली the sort of relationships in which a sulker is most likely to find a cooperative target, it follows that sulks are most common in response to precisely the sorts of problems whose solution requires effective communication. The more conducive the circumstances are to sulking, the greater the obstacle sulking poses to solving the problems that the sulker is sulking about. So too much of sulking, let's read it again. I lost my way. कि ये एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप्स है जहाँ पर सल्कर को कोऑपरेटिव टारगेट मिलेगा. आपके घर वालों से ही आप रूठ सकते हैं, वही आपको मनाएंगे, राइट. आप कोई सड़क पे सड़क छाप आदमी आर्यन जैसा तो कोई मनाएगा नहीं. इट फॉलोज दैट सल्क्स आर मोस्ट कॉमन इन रिस्पॉन्स टू प्रिसाइजली द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हुज सोल्यूशन रिक्वायर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो ये फॉलो करता है कि सल्क हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे ज़रूरी होता है वहीं पर इट टेक्स प्लेस. The more conducive the circumstances are to sulking, the greater the obstacle sulking poses to solving the problems that the sulker is sulking about. जितने conducive is favorable, ठीक है, and the circumstances are to sulking, जितने favorable circumstances रहेंगे sulking के लिए, उतना ही बड़ा obstacle है problem solving. It is little wonder why we find it so frustrating to be the target of a sulk. इसीलिए लिटिल वंडर मतलब नो वंडर, कोई बड़ी बात नहीं है. सबको पता है कि जब कोई हमसे रूठ जाता है तो बहुत बुरा फील होता है. दिस शेड्स लाइट ऑन वाई वी व्यू सल्किंग एज चाइल्डिश. अब हम सल्किंग को चाइल्डिश क्यों मानते हैं? तो हमको क्यों लगता है कि रूठना एक बचकानी हरकत है? क्योंकि बच्चों के ग्रीवांसेस होते हैं और बच्चों के पास वो स्किल नहीं होती कि वो बैठ के बात कर सकें और आपस में मामले को सुलझा सकें. तो छोटे बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं कि अच्छा मम्मा आप ना टेबल पे आके मेरे साथ बैठी है, आपने मुझे टॉय नहीं दिलवाया और आपने मेरे को मेरे फ्रेंड्स से कंपेयर करा सबके सामने और आपने मेरी इंसल्ट करी है और ये बहुत ख़राब है और आप मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा दे रही हैं. तो ये सही तरीके की पेरेंटिंग नहीं है. यू नो, चिल्ड्रन डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, दैट काइंड ऑफ विल टू बी एबल टू रिजॉल्व समथिंग, राइट. And sulking children can expect a responsive caregiver to offer both comfort and practical assistance. तो हम बच्चों के जैसे, जब हम बच्चे होते हैं तो हम वेट करते हैं कि हमारा केयर गिवर रिस्पॉन्ड करे, हमको कंफर्ट करे, हमको प्रैक्टिकल असिस्टेंस दे, ठीक है. बट एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे आर एनकरेज टू यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस वॉट इज़ रॉन्ग एंड टू थिंक थ्रू हाउ थिंग्स कुड बी मेड बेटर. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको एनकरेज किया जाता है कि हम वर्ड्स यूज़ करें और लोगों को बताएं कि देखो हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और लोगों को समझाएं कि देखो हाउ डू वी मेक थिंग्स बेटर. सल्किंग इट सीम्स इज फॉर पीपल हु आर स्टिल लर्निंग बेसिक लाइफ स्किल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको कहीं, कि रूठना उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बेसिक लाइफ स्किल नहीं है. क्योंकि जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो सल्किंग से काम नहीं चलता, बात करना आना चाहिए. तो जो लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो एक्चुअली इमैच्योर हैं, वो चाइल्डिश हैं, क्योंकि उनको अपनी बात रखने नहीं आती है, क्योंकि उनको डिस्कशंस करने नहीं आती हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि यू नो कैसे किसी मामले को सुलझाना है, कैसे बैठ के एक ऑनेस्ट वल्नरेबल रॉ कॉन्वर्सेशन करनी है. एडल्ट्स शुड नो बेटर दैन टू डिमांड to have their worries patiently coaxed out of them by someone who will resolve their problems. Adults should know better. ये नहीं चलेगा कि आप बैठ के मन ही मन रूठ रहे हैं और कोई आए और आप ये डिमांड करें कि वो बंदा आए और एक एक करके आपके संग पेशेंटली बैठ के आपसे उगलवाए एक एक प्रॉब्लम की क्या क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके बाद आपसे निकलवाए कि भाई तुझे बता तुझे क्या प्रॉब्लम हुई है और बैठ के आपके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करें. ठीक है. बट परहैप्स sulkers are getting a raw deal here. Sometimes sulkers sulk because they feel they have no better option. लोग इसलिए रूठते हैं क्योंकि उनको लगता है रूठने से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है और उनको पता है कि रूठना असर करता है. यू नो, एक बार बच्चों को पता चल जाए कि उनके रूठने से या रोने से आप उन्हें मनाते हैं तो वो बार बार यही करते हैं. सैड बात ये है कि ये काम एडल्ट्स जब करते हैं तो बहुत इरिटेटिंग होता है. तो जब पेरेंट्स साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं या रोने लग जाते हैं या फिर जब स्पाउसेस ये काम करते हैं तो हर्ट होता है, क्योंकि फिर हम एडल्ट्स के जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं. Given that sulking is a somewhat understandable strategy through which powerless people can get their needs met, it is puzzling that we are so opposed to it. जब हमको पता है कि हम लोगों से अपनी नीड्स मीट करवा सकते हैं सल्किंग से, तो ये थोड़ा पजलिंग मैटर है कि हम सल्किंग के खिलाफ हैं. हम किसी भी रिलेशनशिप काउंसलर से ये नहीं सुनते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ आज घर पे ना सल्क कर लेना तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी.
कोई कॉलमनिस्ट आपको एक कॉलम में लिख के नहीं देगा कि मैं तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ कि जाओ जाके सल्किंग करो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ठीक है. I've been waiting sulkers as demanding help with solving their problems, but in some sinister cases that's not what's happening. तो ये बोलता है कि भाई मैंने हमेशा से सल्कर्स को ऐसे पेंट करा है जैसे वो हेल्प मांग रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन कुछ सिनिस्टर केसेस में यानी ईविल केसेस में ये नहीं हो रहा होता है. आप कभी कभी रूठने के बहाने कोऑपरेटिव टारगेट को मजबूर करते हैं कि वो आपके हिसाब से चले. पेरेंट्स डू दैट वेरी ऑफन विद देयर चिल्ड्रन, कि उनको पता है कि हमारा बच्चा सीधे तरीके से नहीं मान रहा, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि बच्चा मजबूर होके आपको मनाने के लिए, आपको परेशान ना देखने के लिए, आपने जो खाना छोड़ रखा है आपको खाना खिलाने के लिए आपकी बात मान जाए. ये बात मनवाने का सबसे घटिया और बचकाना तरीका है. सल्किंग कैन बी यूज बाय अब्यूजर्स टू अंडरमाइन एंड मैनिपुलेट. तो लोग सल्किंग को यूज़ करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके अपने घर के लोग, आपके अपने पहचान के लोग, आपके अपने दोस्त, या फिर आपको चैलेंज करने के लिए. Abusive sulkers do not sulk in order to solve a problem. They sulk in order to dominate and terrorize. Very, very important. People are sulking because they want to dominate over you and they want to terrorize you. They want to tell you that you are wrong. They want to manipulate you into doing something evil. Sulking works because communication is complex and because realizing our communicative aims often depends as much on how we communicate as it does on what we communicate. This is not always acknowledged in cultures that Lord is praise, clear, transparent, cards on the table communication, and in which people could be forgiven for thinking that anything worth saying is worth saying explicitly. तो सल्किंग काम करती है क्योंकि कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है, लोगों को कम्युनिकेशन एम्स रियलाइज़ नहीं होते हैं, और हम ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं. जिन कल्चर्स में क्लियर, ट्रांसपेरेंट, सारे पत्ते सामने खोल कर रख कर बात करने को अप्रिशिएट किया जाता है, और जहाँ पर लोगों को माफ़ कर दिया जाता है फॉर सेइंग समथिंग, फॉर थिंकिंग दैट एनीथिंग वर्थ सेइंग इज़ वर्थ सेइंग एक्सप्लिसिटली, वहाँ पर सल्किंग को एक्नॉलेज नहीं करते हैं लोग, वहाँ पर उठना मनाना नहीं चलता है. आर डिसअप्रूवल ऑफ सल्किंग रिलेट्स पार्टली टू इट्स इनडायरेक्टनेस. हम सल्किंग को इसीलिए डिसअप्रूव करते हैं क्योंकि सल्किंग इनडायरेक्ट तरीका है, और इसीलिए भी क्योंकि सल्किंग के स्टेक्स बहुत हाई हैं. रिलेशनशिप बैटल्स आर रेगुलरली फॉट एंड वन और लॉस्ट थ्रू सल्किंग. तो ये बहुत कॉमन है, हम सब आए दिन रूठना मनाना चलता रहता है रिश्तों में. इन कॉमन विद आर इनडायरेक्ट फॉर्म्स, विद अदर इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क आउट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन विद सल्किंग. इतना कॉम्प्लेक्स है ये फिनोमिनन और इतने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है कि एक्चुअली समझना मुश्किल है कि चल क्या रहा है, कि ये रूठने का प्रोसेस काम कैसे करता है. हमको पता है कि कोई हमसे रूठा हुआ है तो हम समझ जाते हैं, वी नो इट व्हेन वी सी इट, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट एग्जैक्टली वॉट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस कि एग्जैक्टली क्या मामला है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करना मुश्किल है. हाउ इट वर्क्स, वाई वी डू इट, सो ऑन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. Our limited understanding of all this makes it difficult to formulate and enforce norms about what constitutes fair play in sulking. क्योंकि इसको पढ़ना मुश्किल है और हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या नॉर्म्स या कस्टम्स होने चाहिए जो हम कहेंगे कि रूठने में जायज़ है और कौन सी चीज़ ना जायज़ है. ठीक है. लास्ट पैराग्राफ. व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एन अनोइंग बट अदरवाइज होलसम एंड रिस्पेक्टफुल सल्क तो एंड अ सिनिस्टरली मैनिपुलेटिव वन. तो एक ईवल आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके एक्शंस बदलने के लिए करवाया गया खराब सल्क वर्सेस एक हेल्दी रूठना, होलसम, रिस्पेक्टफुल सल्क के बीच में क्या फ़र्क है. हम कैसे टारगेट करें, पॉसिबली वर्कआउट करें कि विच वन दे आर बीइंग कन्फ्रंटेड विद गिवन दैट द सल्कर वोंट नो. हमको कैसे पता चलेगा अगर हम टारगेट हैं कि सामने वाला मुझसे अपनी बात मनवा रहा है रूठ कर, या फिर उसका रूठना जायज़ है और वो बस चाहता है कि मैं जाके उससे कंफर्ट कर दूँ. हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा है. Consenting to be the cooperative target of a sulk requires, along with a bucket load of patience, unquestioning trust that the sulker is not manipulating us unfairly. Finally, जब आप मनाने के लिए मान जाते हैं कि चल यार ये रूठा है तो इसे मनाना पड़ेगा, आप कंसेंट देते हैं, आप कोऑपरेटिव टारगेट बन जाते हैं. तो इसमें ज़रूरी है कि आपके पास हो दुनिया भर का पेशेंस, जो कि टीचर्स के पास भी बहुत ज़रूरी है, और अनक्वेश्चनिंग ट्रस्ट. आपके अंदर ये ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि ये आदमी अपनी बात मनवाने के लिए मेरा फ़ायदा नहीं उठा रहा है, या अपनी बात मनवाने के लिए या मुझे मैनिपुलेट करने के लिए नौटंकी नहीं कर रहा है. ये फेथ हो तो आप मनाएंगे. अगर ये फेथ नहीं है, अगर आपको लग रहा है सामने वाला अनड्यू एडवांटेज ले रहा है अपनी पोजीशन का आपकी लाइफ में, तो फिर आप मनाएंगे नहीं.
Very often this brings with it a nagging fear that the sulker might be taking us for a mug. हमको अक्सर ये डर लगा रहता है कि सामने वाला हमारे मज़े ले रहा है और ये रूठना हमें महंगा पड़ेगा. ठीक. So I hope you enjoyed the article. I thoroughly did. Let's do 2 questions based on it. Okay. Let's do the first question. What is your answer? Also, which type of question is this? Which kind of question is this? Very good. Further application question. नॉलेज यूज़ करना है, ऑथर के माइंडसेट को समझना है और फिर उसके बाद उस नॉलेज को फर्दर अप्लाई करना है. करेक्ट. फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर एप्लीकेशन. आंसर बताओ. नीलाक्ष क्लास करो. 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं आरसी में. कैसी बात कर रहे हो? ओके. इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि कोई चीज़ जो मेंशन्ड है लेकिन उस पर विशेष चर्चा नहीं की गई है, वो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होना चाहिए. याद है? तो अब्यूजिव सल्कर कैसे ऑपरेट करते हैं ये दिया हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे. सल्किंग को चाइल्डिश क्यों कंसिडर किया जाता है ये भी एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि चिल्ड्रन की अपनी नीड्स होती है और उनके पास समझाने के लिए स्किल नहीं होती है, तो ये भी दिया हुआ है. कौन से कल्चर्स रूम अलाउ नहीं करते हैं जहाँ पर डायरेक्ट गिवन इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट किया जाता है. सल्कर्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ क्यों कंफर्टेबल नहीं है ये एक्सप्लेन नहीं है. बस लिखा है कि कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन क्यों कंफर्टेबल नहीं है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है. तो हम इसके बारे में ऑथर से पूछ सकते हैं. ठीक है. इनफैक्ट आई थिंक आई हैव गॉन रॉन्ग हियर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Second is given, third is given, fourth is also given. Sulkers are not comfortable with direct communication because that will take away the मज़ा of sulking. और flirting वाला example दिया हुआ है. What is the question that you should ask the interviewer is interview the author is how do abusive sulkers operate, because ये mentioned है but explained नहीं है. ये वाला देखो. I'll give it to you. Where is the dominating वाला passage paragraph? ये नहीं है, ये भी नहीं है. ये रहा. Sinister cases, and here sometimes sulkers sulk because they don't have a better option. Sometimes they have a strategy because they are opposed to it. And we don't feel people are actually encouraging you. So then abusive sulkers do not sulk in order to solve a problem but in order to dominate and terrorize. Abusive sulkers के बारे में author mention करता है लेकिन इसको further elaborate नहीं करता है. ठीक है. तो how do abusive sulkers operate? This is not given in the passage. I'm sorry. This is the answer. This is given, this is given, this is given. I hope you now agree with this. बहुत सारे लोगों ने डी बोला तो मैंने भी भावुकों के डी बता दिया. ठीक है. सो हाउ डू अब्यूजिव सल्कर्स ऑपरेट? दिस इज नॉट गिवन. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर? व्हाट इज द आंसर? ओके. It is not optimistic. There is no optimism or hope in the passage. There is no narration in the passage. Narration is with an aspect of storytelling. Discursive is when you digress from one topic to the other, or you are into a discourse when you are giving a lecture. ना तो ये डाइग्रेस कर रहा है टॉपिक से और ना ही ये कोई से सिंपल लेक्चर दे रहा है. ये एक्सप्लेन कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है कि सल्किंग कैसे काम करती है, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं,
क्या नेगेटिव्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ फेयर है, कहाँ अब्यूजिव है. सो आई वुड कॉल इट एन एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग. ठीक है. इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल फ्रॉम एऑन, द जॉय ऑफ सल्क. ठीक है. फ्रॉम एऑन एसेज. I have done the full article with you, so you don't need to reread it, but I hope you enjoyed it. Use code Karishma Live and get 20% off along with the 3-month free with 6 months and 6 months free with a 12-month subscription. This offer will end today. Today is the last day. Okay? And I would like to thank you for making it to the session and cooperating. This month we haven't done many eclectic readings. I counted them, they are around 8 or 9. The problem is that because I was on leave this month, they are all too clubbed up together. So I think we have another session tomorrow, fortunately or unfortunately, and I'm trying to get it changed to RC practice. So tomorrow 12:30, either we will have eclectic reading if the team doesn't agree. If the team agrees, we'll have RC practice and we'll practice probably a couple of RCs in half an hour. So that's the agenda for tomorrow. So I'll post the link tonight on the Telegram channel. Today we also have a plus class at 7:30 in which we are finishing the RC advanced course, and we are doing that by practicing some RC. So I shall see you in the evening hopefully. So till then, take good care of yourselves. Please stop sulking. Learn how to behave like adults. Learn to have good communications. Learn how to um, have a raw, vulnerable space wherein you can have honest conversations. I know it's difficult, but it's worth it because that's what strengthens relationships. I hope you have a good day ahead. I'll see you in the evening. Till then, take care of yourselves.